Students, today we will discuss the next topic of chapter surface chemistry, that is emulsions. And this is the lecture number 14 of surface chemistry. And in today's lecture, beta, we will discuss first is the definition of emulsions. Ki what do you mean by emulsions, meaning whatever you want to say. Then how many types of emulsions are there. Then we will discuss how the emulsions are formed. The process is said to be the emulsification. Then we will find out the identification of emulsions. Actually, emulsions are of various types. So how can we identify that this particular emulsion is of this type and this particular emulsion is of this type? That we will study in the identification. Then we will study the applications of emulsions in our day-to-day life, or you can see in the industrial level. And in the last, we will study the de-emulsification. Listen, student, the formation of emulsification is the formation of emulsion is said to be the emulsification, whereas the breaking of emulsions in the component में break करना, that is de-emulsifications. So this is the layout जो मैंने आपको बताई आज study क्या करना है. So I'll start with the first one, that is emulsions. Emulsions means colloidal solution in which both dispersed phase as well as dispersion medium both are liquid. Normally the colloidal solutions, they contain the two things: dispersed phase, dispersion medium, and if both are liquids, that is said to be the emulsions. And since both components are liquid, so emulsions are also said to be liquid in liquid colloidal solutions. Keep this thing in your mind. Clear to all of you? So beta, basically before we go in the detail, मैं आपको बता दूं that there are two components and both components are liquid. Now we will see about the components of emulsions. There are two components. One component is oil and other component is water. Be clear, two components are there. One component is oil, other component is water. ठीक है. अब since we know that oil is a liquid and water is also a liquid. अब ये तो थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कंपोनेंट्स क्या है, व्हाट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, और बेसिकली कंपोनेंट क्या है, वन इज ऑयल, अनदर वन इज द वाटर. अब हमें स्टडी क्या करना है, वी हैव टू स्टडी द टाइप ऑफ इमल्शंस, और वो जो टाइप हम स्टडी करेंगे वो डिपेंड करेगा रिलेटिव अमाउंट ऑफ दीज कंपोनेंट्स. किस पे डिपेंड करेगा? रिलेटिव अमाउंट. क्लियर कि ऑयल और वाटर में विच इज मोर. In one case oil is more, in other case water is more. So today we come to the second point now. First हमारा हो गया as far as definition is concerned, emulsions, these are the colloidal solution in which both dispersed phase as well as dispersion medium both are liquids. Clear? And one of the component is water, whereas the other component is oil. Now we'll study the types of emulsions. Types of emulsions. This is beta, student, on the basis of a relative amount of water and oil. What does it mean? आपको रिलेटिव अमाउंट चेक करना है कि इन वन ऑफ द इमल्शन ऑयल ज़्यादा है, इन अदर इमल्शन वाटर इज मोर. सो जस्ट सी आउट, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट इज सेड टू बी द ऑयल इन वाटर इमल्शन. ऑयल इन वाटर इमल्शंस. whereas the second is, students, water in oil emulsions. This is also written as OW, means oil in water.
this is written as W by O, water in oil. Now beta, oil in water means water is the dispersion medium and oil is the dispersed phase. Clear? Here water in oil means oil is the dispersion medium whereas water is the dispersed phase. So दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर करनी है. ऑयल इन वाटर, ऑयल वाटर के अंदर है तो किसके अंदर मींस क्वांटिटी किसकी ज़्यादा हुई, वाटर की ज़्यादा हुई. तो डिस्पर्जन मीडियम कौन होता है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है. यहाँ से देखिए ऑयल इन वाटर, हम एक कंपोनेंट को दूसरे में डालते हैं तो नॉर्मली जिसका कंपेरेटिव अमाउंट कम है उसको दूसरे में ऐड किया जाता है. तो ऑयल इन वाटर का मीनिंग क्या है कि वाटर इज प्रेजेंट इन मोर प्रपोर्शन whereas oil is present in less proportion. Therefore this water it will act as dispersion medium, oil it will act as dispersed phase. और अगर यहाँ पे आप देखेंगे water in oil means oil is present in more proportion whereas water is present in less proportion. Clear? So oil here act as dispersion medium and water here act as dispersed phase. Clear to all of you? So as far as definition is concerned, oil in water emulsions, these are the emulsions in which dispersed phase is oil whereas the dispersion medium is water. And in this case these are the emulsions in which water in oil emulsions, dispersed phase is water whereas the dispersion medium is oil. This thing is clear to all of you. Now I'll tell you some example. Oil in water, the example is milk. Milk में क्या होता है बेटा, in the milk oil is dispersed in water. Oil means fats. जो आपके फैट्स होते हैं वो बेसिकली ऑयली होते हैं नेचर में. सो दीज ऑयल आर डिस्पर्स्ड इन वाटर. सो वाटर यहाँ पे क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम. एंड सेम वन मोर एग्जांपल, वेनिशिंग क्रीम्स. नाउ वाटर इन ऑयल इमल्शंस, द एग्जांपल्स आर कोल्ड क्रीम, बटर. जो बेटा कोल्ड क्रीम है, कोल्ड क्रीम में क्या होता है, दीज आर वाटर इन ऑयल इमल्शंस. मींस जो आपका ऑयल है इट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट. क्लियर? इन बोथ ऑफ द केसेस. और वाटर जो है बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. सो कोल्ड क्रीम एंड बटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ, यू कैन से, वाटर इन ऑयल इमल्शंस. एंड वेनिशिंग क्रीम एंड milk, it is an example of oil in water emulsions. So this thing is clear to all of you. Two types we have done, oil in water, water in oil. So this we have completed our second part of today's lecture, that is types of emulsions. Before I go in the further next part, एक बार फिर से देखते हैं. Emulsions, these are the colloidal solutions in which both dispersed phase as well as dispersion medium are liquid, and the components, one is water, another one is oil. Clear? If water is more, it will be oil in water emulsion. Clear? If oil is more, sorry, if water is more, it is oil in water, and if oil is more, it is water in oil emulsions. Clear to all of you? Now I will shift to the third part, that is formation of emulsions. Third part, formation of emulsions. Formation of emulsions. This process is also said to be emulsification. चलिए, पहले इस प्रोसेस को डिटेल में करने से पहले हम एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इफ़ वी, नॉर्मली क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ emulsions में, वी मिक्स ऑयल एंड वाटर. जो हमारे कंपोनेंट है उनको मिक्स करते हैं बाई विगरस शेकिंग. शेकिंग में बहुत ज़्यादा शेक करना है, तो शेक करने से क्या होगा, ये नॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे. बट व्हेन वी फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर, देन द इमल्शन फॉर्म्ड इज लेस स्टेबल.
जो आपका इमल्शन बनेगा वो कम स्टेबल बनेगा। क्यों बनेगा, मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। सपोज बेटा दिस इज द कंपोनेंट दैट इज ऑयल एंड दिस इज द कंपोनेंट दैट इज वाटर। These are the molecules of oil and these are the molecules of water. On the inner side दोनों में ही there is a force surface tension. I'll write. I think मुझे को डिटेल में आपसे डिस्कस करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज सरफेस टेंशन आपको अच्छी तरह पता है, यू डन इन द 11th क्लास। जो आउटर लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर के मॉलिक्यूल्स दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड देमसेल्फ। सेम इन द केस ऑफ वाटर, वाटर में भी एक अंदर की तरफ टुवर्ड द इनसाइड द फोर्स दैट इज सेड टू बी सरफेस टेंशन। अब इस सरफेस टेंशन की वजह से क्या है बेटा, जब ये वाटर और ऑयल एक दूसरे के टच में आएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इधर अट्रैक्टेड है, ये उधर अट्रैक्टेड है। क्लियर? सो ड्यू टू विच दीज ऑयल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स डज नॉट मिक्स, ये आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे, और मिक्स नहीं होंगे देन व्हाट हैपन्स, आफ्टर सम टाइम ऑयल एंड वाटर सेपरेट्स, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो नॉर्मली अगर हम इनको शेकिंग से मिक्स करते हैं तो ड्यू टू सरफेस टेंशन दोनों लेयर्स में है, और प्रॉपर वर्ड जो यहां पर आएगा दैट इज सेड टू बी इंटरफेशियल टेंशन। बेटा इस टर्म को आप लर्न करेंगे, इंटरफेशियल टेंशन। ये देखो इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब जहां पर वाटर और ऑयल एक दूसरे में मिक्स होंगे। यहां पर एक टेंशन है, दैट टेंशन इज सेड टू बी द सरफेस टेंशन, जो अपने अपने लिक्विड्स में इंटरनल डायरेक्शन में लग रही है, ड्यू टू विच ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। सो नॉर्मल मिक्सिंग से क्या होता है कि आपका ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता ड्यू टू इंटरफेशियल टेंशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंटरफेशियल टेंशन यहां पर है सरफेस पर दोनों में, वाटर में भी और ऑयल में, और आपका जो सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? सो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था कि हम क्या करते थे, वी नॉर्मली मिक्स ऑयल एंड वाटर बाय विग्रस शेकिंग, बट यहां प्रॉब्लम की थी इमल्शन फॉर्म्ड इज लेस स्टेबल, रीजन ड्यू टू इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द वाटर एंड ऑयल। क्लियर? These oil and water molecules does not mix, आपस में मिक्स नहीं होंगे, and after some time the oil and water separates. अब जो लेटेस्ट मेथड है, we are having a problem. हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है कि अगर ये वाटर और ऑयल के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाए तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक स्टेबल सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों को आपस में मिक्स करने के लिए हमें एक थर्ड सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है, एंड थर्ड सब्सटेंस हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द लेटेस्ट मेथड। सो आई राइट द प्रॉपर, मैं बेटा इसको हटा रहा हूं, जस्ट सी व्हाट वी विल यूज टुडेज मेथड, दैट इज द प्रॉपर मेथड इज नाउ mix oil and water with addition of emulsifying agent. What we have to add? हमें ऑयल और वाटर को मिक्स करना है और साथ में वी हैव टू ऐड इमल्सिफाइंग एजेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो पहले देखते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है और ये क्या करता है। पहले एक डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट सी इट केयरफुली। दिस इज, यू कैन से ऑयल मॉलिक्यूल्स 1 2 3, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑयल वाटर। यहां पर इंटरनल सरफेस टेंशन है, देयर इज एन इंटरनल सरफेस टेंशन, हियर आल्सो देयर इज एन इंटरनल सरफेस टेंशन। सो यहां पर देयर एग्जिस्ट इंटरफेशियल टेंशन। अब देखिए बेटा, ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ खींच रहा है, इट विल बी पुश्ड टुवर्ड इनसाइड, ये अपर साइड में पुश्ड है, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। नाउ इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा? आई विल राइट विद EA। EA इज इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट बीच में आएगा, मैं सिंपली इसको डिनोट करूंगा इस तरह से, आई विल टेक इट लाइक अ सर्कुलर पार्ट, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका इमल्सिफाइंग एजेंट है। ऑन द वन साइड ये इमल्सिफाइंग एजेंट किससे जुड़ेगा? ऑयल से,
ऑन द अदर साइड ये किससे जुड़ेगा, वाटर से। सो ये पूरा मैंने जो इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे ऐड किया है, इस इमल्सिफाइंग एजेंट ने क्या किया, जस्ट सी आउट दिस इमल्सिफाइंग एजेंट, ये वन साइड तो बेटा ऑयल से जुड़ेगा और अदर साइड किससे जुड़ेगा, वाटर से जुड़ेगा, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स। क्यों, देखिए ये मॉलिक्यूल इस साइड में अट्रैक्टेड था सरफेस टेंशन से, इमल्सिफाइंग एजेंट आया तो ये मॉलिक्यूल को किसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इमल्सिफाइंग एजेंट ने। सो ड्यू टू विच सरफेस टेंशन क्या होगी, कम। हम इसको एक प्रॉपर इस तरह से दिखाएंगे, ध्यान से देखिए इस चीज में। ये मॉलिक्यूल्स यहां पर जा रहा था ड्यू टू सरफेस टेंशन, अब इस मॉलिक्यूल को किसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, दिस इमल्सिफाइंग एजेंट, इसने अपनी तरफ किया, तो ये जो सरफेस टेंशन थी कम होगी। सिमिलरली यहां वाटर वाले पार्ट में भी ये मॉलिक्यूल दिस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द इनर साइड, अब इसी मॉलिक्यूल को बाहर कौन अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इमल्सिफाइंग एजेंट, तो यहां पर जो सरफेस टेंशन थी वो भी क्या होगी, कम होगी। अब ये वाली सरफेस टेंशन भी डिक्रीज करेगी और ये वाली सरफेस टेंशन भी डिक्रीज करेगी, ड्यू टू विच द इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीजेस एंड व्हाट हैपन्स, द ऑयल एंड वाटर मिक्सेस, ये आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझा दिया है, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि काफी इट्स अ टिपिकल टॉपिक। इमल्सिफाइंग एजेंट ऑन द वन साइड किससे जुड़ेगा, ऑयल से, ऑन द अदर साइड वाटर से जुड़ेगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा, ड्यू टू विच सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीजेस एंड दीज दे विल मिक्स विद ईच अदर। सो यहां से हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेशन तो हो गया भाई, हाउ कैन आई फॉर्म, वी विल मिक्स ऑयल एंड वाटर विद द लिटिल वन एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। नाउ वी विल डिस्कस, और इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जांपल्स भी काफी हैं, अगर आप मिल्क में लेके चले, आई विल गिव यू द एग्जांपल है, इन द मिल्क दीज आर द, यू कैन से ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल और फैट, दिस इज वाटर ड्रॉपलेट, एंड इन बिटवीन व्हाट इज प्रेजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, और उसका नाम मैं आपको बता दूं, कैसीन, दिस इज इमल्सिफाइंग एजेंट, दिस इज CASEIN। ऑन द वन साइड ये किससे अटैच्ड है, ऑयल से, ऑन द अदर साइड किससे अटैच्ड है, वाटर से। सो वाटर, ये जो आपका कैसीन है, जो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट है, ये ऑयल और वाटर को मिक्स करने में हेल्प करता है, इट्स मेन फंक्शन इज इन द मिक्सिंग। सो एग्जाम्पल इज क्लियर, कैसीन। नाउ वी विल सी व्हाट इज the definition of all these. डायग्राम अभी रहने देते हैं because we have to understand. Emulsifying agent, first definition, the substance which stabilize the emulsions. इसने क्या किया बेटा, इमल्शन को स्टेबल किया, स्टेबल इन द सेंस ऑयल एंड वाटर क्या हो गए, आपस में मिक्स हो गए, क्लियर। और इट रिड्यूसेस इंटरफेशियल टेंशन, उसको भी रिड्यूस किया, और इट इज अ कंपोनेंट ड्यू टू विच द ऑयल एंड वाटर मिक्सेस with each other. So these are the various meanings of emulsifying agent. One example you will learn that casein, CASEIN, clear. Now we will study what is the structural feature of emulsifying agent, क्या स्पेशलिटी है। अब देखिए बेटा, emulsifying agent जो है, suppose this is, I'll give you one example. All of you know about the soap C17H35COONA. This is a soap, clear. सोप को जब आप सॉल्यूशन में डालोगे, it will give you C17H35CO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो सोप है, ये बेसिकली एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट में क्या चीज होती है, जस्ट मैं क्लियर कर दूं आपको। इमल्सिफाइंग एजेंट को वन साइड कहां से अटैच होना है, वाटर से, और अदर साइड कहां से अटैच होना है उसको, ऑयल से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यहां पर अगर आप लिखेंगे, सोप का मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको, इसको हम ऐसे लिखते हैं C17H35COO नेगेटिव। तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है,
दिस इज सेट टू बी, या इसको प्रॉपरली आप ऐसे ही लिख लीजिए, डजंट मेक, C17H35 COO नेगेटिव। अब ये आपका एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। इसमें ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, और CO नेगेटिव जो चार्ज वाला पार्ट है बेटा, दिस इज हाइड्रोफिलिक। आई थिंक यू नो मीनिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक तो किससे अटैच होगा, ऑयल से, और हाइड्रोफिलिक किससे अटैच होगा, वाटर से। तो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट में दो पार्ट्स होंगे, वन पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, जो कहां से जुड़ेगा, वाटर से जुड़ेगा। सो इसमें एक पार्ट टुवर्ड द वाटर, कौन सा पार्ट हुआ इसका, हाइड्रोफिलिक, एंड टुवर्ड द ऑयल विच पार्ट, hydrophobic. So what is the structural speciality of an emulsifying agent? Your emulsifying agent contain the two things. One is hydrophobic, another one is hydrophilic. The hydrophilic part will be attracted toward the water, or it will be toward the water side, whereas the hydrophobic will be toward the oil side. और hydrophobic आपको मैं बता दूं, it is a long hydrocarbon part, जितने भी कार्बन चेन्स है all are hydrophobic. So ये स्ट्रक्चरल फीचर था किसका, आपका इमल्सिफाइंग एजेंट का। Am I clear to all of you? So यहाँ तक आपको क्लियर हो गया what is the meaning of emulsifying agent, ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट, क्लियर, एंड हाउ द इमल्सिफाइंग एजेंट स्टेबिलाइज। ये क्या करेगा, इंटरफेशियल टेंशन। What is the meaning of interfacial tension? Surface tension at the interface of two liquids. उसको reduce करेगा, due to which the molecule they will mix with each other. So beta this we have done the third one, that is formation of emulsion or emulsification. Now we will shift to the fourth part, that is identification of types of emulsions. Just see now. Fourth part is identification of type of emulsions. Now the students just see out. We know that emulsions are of two types. First, oil in water. Second, water in oil. This is, you can say, oil in water. This is water in oil. And we know that in this case, dispersed phase oil, dispersion medium water, dispersed phase water, dispersion medium is oil. So we have to identify कि जो आपको colloidal solution given है, the colloidal solution given to us, that is either of oil in water or water in oil. So we are having two tests. हम दो टेस्ट करेंगे. The first test, dye test, and the second test is dilution test. Two tests normally we will see now. So first I'll explain with the help of dye test. Dye test to identify type of emulsions. Just see out the students now. The dyes, they are of two types. Number one, oil soluble, and number two, water soluble. Now we will perform our experiment either with the oil soluble dye or with the water soluble dye. So just see it carefully. So first what will I do? I will add oil soluble dye. बड़े ध्यान से करना है बेटा. मैंने क्या ऐड किया, ऑयल सॉल्युबल डाई ऐड की. देन व्हाट हैपन्स, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर. ऑयल सॉल्युबल डाई में इफ होल सॉल्यूशन सीम्स टू बी कलर्ड, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये मिलेगी, आई विल गेट दिस ऑब्जर्वेशन, और कलर्ड स्पॉट्स आर ऑब्जर्व्ड, आई विल गेट टू ऑब्जर्वेशंस. मैं क्लियर करता हूं, जस्ट सी आउट डायग्राम. ये एक आपका इमल्शन को मैंने रिप्रेजेंट किया. जो डाई है वो किस में सॉल्युबल हो रही है, ऑयल में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और आपका कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए, इसमें मैं क्लियर कर देता हूं.
ये मैंने डिस्पर्जन मीडियम लिया है, दिस डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर एंड दीज आर द ऑयल ड्रॉपलेट्स। ओके अब ये जो आई है ये किस में, सॉरी दिस डाई इज सॉल्यूबल इन ऑयल, क्लियर। तो जो डाई बेटा मैंने ऐड करी है वो सिर्फ कितने हिस्से को कलर्ड करेगी, इन ड्रॉपलेट्स को कलर्ड करेगी, सिर्फ ड्रॉपलेट्स को, बाकी जो वाटर है उसको कलर नहीं कर पाएगी क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। तो मेरे को क्या मिलेगा, ये जो आपकी ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स बिकम्स कलर्ड फर्स्ट। सो अगर आपकी ऑयल ड्रॉपलेट्स कलर्ड हो जाती हैं देन इट इज ऑयल इन वाटर इमल्शंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस ऑब्जर्वेशन पे कलर्ड स्पॉट्स आर ऑब्जर्व्ड, मुझे क्या मिलेंगे, कलर्ड स्पॉट्स मिलेंगे, क्लियर। सो ऑयल ड्रॉपलेट्स गेट कलर्ड, तो मुझे क्या मिला बेटा, कलर्ड स्पॉट्स आर ऑब्टेन्ड एंड द सॉल्यूशन और योर इमल्शन इज सेड टू बी ऑयल इन वाटर इमल्शन। पहली ऑब्जर्वेशन, क्लियर। नाउ सी this one we have done. One more we can get the observation. Second, if the oil is in excess, very carefully, these oil now, these are oil as dispersion medium and these are now the water droplets. नाउ सी द स्टूडेंट्स, हमने डाई कौन सी ऐड करी है, वी हैव एडेड ऑयल सॉल्युबल डाई। तो जो आपकी डाई है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को कलर नहीं करेगी, इंस्टेड ये जो पूरा सॉल्यूशन है, पूरा डिस्पर्जन मीडियम है, दिस होल डिस्पर्जन मीडियम बिकम्स कलर्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या मिली, द होल सॉल्यूशन सीम्स टू बी कलर्ड। इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन कलर्ड हुआ, इट मीन्स ऑयल बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, देन इट विल बी water in oil emulsion. Clear to all of you. So first observation, there are two observation. पहले मैंने second को डिस्कस किया था, फिर मैंने इसको किया। कंक्लूजन निकालते हैं, आपने ऐड क्या किया, what you have added, you have added an oil soluble dye, oil soluble dye ऐड की, and if the whole solution is colored then it is water in oil, and if colored spots are obtained then it is oil in water. So this is the first method that is said to be the, you can say, dye test, जिसमें हमने क्या ऐड किया था, ऑयल सॉल्युबल डाई ऐड की थी। सिमिलरली हम क्या ऐड कर सकते हैं, वी विल ऐड वाटर सॉल्युबल डाई आल्सो। क्लियर। सो सी द सेकंड वन, ए पार्ट वी हैव डन, नाउ वी विल डू द बी पार्ट। इन द बी पार्ट और सेकंड पार्ट वी विल ऐड water soluble dye. Clear. Water soluble dye is added. Again I'll get the two observations. Colored spots are obtained or the whole solution seems to be colored. Two observations I'll normally get. So अगर colored spots मेरे को मिले, फिर से मैं वही बात बता रहा हूं, जस्ट सी आउट। ये एक डिस्पर्जन सेम इमल्शन में ड्रॉ कर रहा हूं दो टाइप में। दिस इज, इफ आई विल से ऑयल, देन दीज आर वाटर ड्रॉपलेट्स एंड द सेकेंड आई ड्रॉ हियर सेम वाटर ऑयल ड्रॉपलेट्स। सो ये दो टाइप के इमल्शंस हैं। अब आपने ऐड क्या किया, वाटर सॉल्युबल डाई। सो डाई सीधा किस में सॉल्युबल होगी, वाटर में। तो यहां पर देखिए बेटा, ये जो वाटर है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो ये वाला जो पार्ट होगा, दिस पार्ट गेट्स कलर्ड। सो मेरे को क्या मिलेगा, कलर्ड स्पॉट्स आर ऑब्टेन्ड। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर। एंड इफ, यहां पर आइए, सेकंड में जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है वो वाटर है, सो ये पूरा कंप्लीट डिस्पर्जन मीडियम विल बी कलर्ड। देन द सेकंड ऑब्जर्वेशन आई गॉट, द होल सॉल्यूशन इज कलर्ड। सो दो टाइप के ऑब्जर्वेशंस आई, सेम। फर्स्ट, colored spots are obtained, second, whole solution is colored. Now if the colored spots are obtained then it is water in oil emulsion.
which one? Water in oil. And if the whole is colored, then it is oil in water. So this you will do, this we have done the dye test to identify the type of emulsions. Now I will do the second test, that is the dilution test. Second test is dilution test. Dilution test to identify type of emulsions. So dilution means, all of you know, बेटा डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर. आपने वाटर को ऐड किया, ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस. क्लियर? अब सिंपल सा लॉजिक है, एक चीज को ध्यान से करना है. दिस इज वाटर एज डिस्पर्जन मीडियम एंड दीज आर oil droplets. Clear? This is the first, that is oil in water emulsion. Now the second diagram. In the second diagram, oil, dispersion medium, and these are water droplets, or you can say this is water in oil. अब डाइल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जस्ट सी आउट. डाइल्यूशन मीन्स क्या होता है बेटा? वी हैव टू ऐड द वाटर. सो हम डाइल्यूशन के लिए वाटर ऐड करते हैं. सो सेम आई विल डू, ऐड वाटर टू द इमल्शंस. हमने इमल्शन में वाटर ऐड कर दिया. अब जब आपने इमल्शन में वाटर ऐड किया, देन यू विल गेट द टू टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यहां पे देखिए बेटा, इसमें वाटर जो है डिस्पर्जन मीडियम है. तो डिस्पर्जन मीडियम का मतलब यहां पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है. तो डिस्पर्जन मीडियम को हम किससे रिलेट करते हैं? डिस्पर्जन मीडियम इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू सॉल्वेंट. तो यहां पर जो आपका वाटर है, इट विल बी एडेड. सो वाटर विल बी एडेड ड्यू टू विच द डाइल्यूशन अकर्स. यहां पे आपका डाइल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है. बट अगर आप यहां पे वाटर ऐड करोगे तो बेटा सारा का सारा वाटर जो है, यहां पे डिस्पर्जन मीडियम क्या है? ऑयल है. तो यहां पे जो सॉल्वेंट है वो कैसे काम कर रहे हैं? सॉल्वेंट जो है वो ऑयल विल वर्क एज अ सॉल्वेंट. तो यहां पर जब आप वाटर ऐड करोगे, इफ वाटर इज एडेड, सो यहां पर क्या डाइल्यूशन हो पाएगा? डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट को ऐड करना, और यहां पर सॉल्वेंट क्या है आपका? ऑयल, और आप ऐड क्या कर रहे हो? वाटर. सो यहां पर देयर इज नो डाइल्यूशन. फिर से समझिए, फिर समझा रहा हूं, कोई इशू नहीं है. डाइल्यूशन में हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ठीक है. अब आपने वाटर ऐड किया, किसके अंदर? वाटर इन ऑयल के अंदर. तो यहां पे सॉल्वेंट ऑयल है और ऐड क्या कर रहे हो? वाटर. अपोजिट हो गया तो डाइल्यूशन नहीं होगा. हेयर ऑयल इन वाटर में सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मीन्स जो डिस्पर्जन मीडियम, दैट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट. वाटर है और आप ऐड भी क्या कर रहे हो? वाटर. तो डाइल्यूशन हो जाएगा. तो अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपने वाटर ऐड किया इमल्शन में, इफ द डाइल्यूशन अकर्स, डाइल्यूशन हो गया, इट इज ऑयल इन वाटर. डाइल्यूशन नहीं हुआ, इट इज वाटर इन ऑयल. रीजन बिल्कुल क्लियर. इन ऑयल इन वाटर, डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, देयरफॉर द डाइल्यूशन अकर्स. यहां पे डिस्पर्जन मीडियम ऑयल है, देयरफॉर डाइल्यूशन नहीं हुआ. सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डिस्कस द टू टेस्ट रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ type of emulsions. Now we'll shift to the next, that is applications of emulsions. So students, in our syllabus there are some applications. Just see out. Applications of emulsions. So in our syllabus there are few applications that I will discuss, not so much applications. First is cleaning action of soap.
Second application is froth, flotation process. Second application. Third, that we will study in case of medicines. Medicines पे स्पेशली अगर मैं डिस्कस करूं, दैट इज ऑइंटमेंट्स. सो पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, मेडिसिन से. सो स्टूडेंट, व्हेन यू सी देयर आर सम मेडिसिन्स विच जस्ट सीम्स टू बी लाइक इमल्शंस, तो देयर आर सम मेडिसिन्स विच आर इमल्शंस बेसिकली, आइदर दे आर ऑफ ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल. तो कुछ मेडिसिन जो है वो हमारी इमल्शंस की तरह ही होती हैं, टाइप कोई भी हो सकती है, दे में बी ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल. नाउ आई विल शिफ्ट टू द सेकेंड पार्ट, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. देखिए बेटा, दिस इज अ वेरी बिग टेक्निक. जब हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मैं टेक्निक की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक अलग चैप्टर जिसमें करना है. यहाँ पे मेरे को स्टडी करना है कि इमल्शन का क्या लॉजिक है. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए, ऑयल, पाइन ऑयल, और यू कैन से सिंपली ऑयल से मैं बात करूंगा. ऑयल मीन्स आपको अंडरस्टैंड करना है पाइन ऑयल, ठीक है. ऑयल प्लस वाटर और साथ में ओर को मिक्स किया जाता है, और जिससे आप मेटल बनाओगे. और क्या होता है, जिससे आप मेटल बनाओगे. सो कौन सी तीन चीजें मिक्स करी हमने, ऑयल, वाटर एंड ओर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ ये जो ओर है, दिस ओर हैज द एबिलिटी टू गेट वेटेड विद ऑयल. ये जो ओर है ये किसके साथ वेट होती है, ऑयल के साथ. मींस इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके लिए आएगी, ऑयल के लिए आएगी. सो ये आपका जो ओर है, दिस इज योर, यू कैन से ओर, ठीक है. दीज आर ऑयल पार्टिकल्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑयल. सो ये जो बना आपका कंप्लीट, ये क्या बन गया आपका, एक इमल्शंस, ठीक है. और साथ में वाटर भी प्रेजेंट है, तो उस चीज को हम लेकर भी चल सकते हैं. तो ये जो आपका ओर है, ये ओर किसके साथ जुड़ा, ऑयल के साथ जुड़ा, और ये भी आपका लिक्विड है और ये भी आपका लिक्विड है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है. सो ये बेसिकली क्या बना आपका, एक इमल्शन बन गया. तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं, व्हाट द लाइन यू हैव टू राइट. अभी डायग्राम को छोड़ के प्रॉपर लाइन हम जो लिखेंगे वो हमें अंडरस्टैंड करनी है. व्हाट वी विल राइट, दैट द ऑयल, ऑयल यू नो, जो आपका पर्टिकुलरली पाइनॉल आपने ऐड किया है, फॉर्म इमल्शंस विद ओर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये आपकी ऑयल ड्रॉपलेट, ये आपका ओर पार्टिकल, ठीक है ना. ऑयल, ओर, व्हाट इज दिस, दिस इज इमल्शन. क्लियर. बाकी जो प्रोसेस है वो इसके बाद होता है, बट द मेन थिंग ये आपका बना. सिमिलरली वी गो टू द लास्ट वन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. तो सोप में भी क्या होता है बेटा, जस्ट सी आउट, द सोप इज आल्सो फॉर्म इमल्शंस विद ऑयल ड्रॉपलेट्स. ऑयल ड्रॉपलेट्स, वो ड्रॉपलेट्स जिनके अंदर आपका डर्ट पार्टिकल एंट्रैप होता है, या हम ऑयल को डर्ट ही मान के चलते हैं. सो व्हाट हैपन्स, जस्ट सी आउट, ध्यान से देखना है. ये आपका डर्ट, डस्ट पार्टिकल कह सकते हो. इसकी नेचर क्या होती है, द नेचर ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल इज ऑयली, ऑयली इन नेचर. तो यहां पर ये आपका जो सोप है, सोप का एक पार्ट किसके अंदर है, ऑयल के अंदर, एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर. वाटर यूज करते हैं क्लीनिंग एक्शन के लिए. तो सोप का जो सेकंड पार्ट है वो किसके अंदर है, वाटर के अंदर. तो ये कंप्लीट हमारा एक क्या रेडी हो जाएगा, दिस विल बी आवर इमल्शन. और यहाँ पे जो सोप है, इट विल एक्ट एज इमल्सीफाइंग एजेंट. समझ में आया आपको. कोई भी डर्ट पार्टिकल है, ठीक है, ऑयल की तरह काम करेगा. सोप में दो पार्ट होते हैं, एक साइड, ऑन वन साइड वो वाटर से अटैच होगा, ठीक है. कौन सा पार्ट वाटर से अटैच होगा, हाइड्रोफिलिक. और ऑयल से कौन सा अटैच होगा बेटा, हाइड्रोफोबिक. सो ये पूरा कंप्लीट आपका क्या रेडी हो जाएगा, इमल्शंस. ठीक है. सो यहां पर सोप कैसे काम करेगा, इट विल एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट. So this we have completed the fifth part, that is applications of emulsions. Now we'll shift to the last part, demulsification. The last part of today's lecture,
इमल्सिफिकेशन। इट इज द, बेटा देखिए इमल्शंस में आपके दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज ऑयल अनदर वन इज वाटर। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इमल्शंस। क्लियर? इसके लिए करना क्या होगा, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट वी हैव टू यूज। जस्ट सी इन इमल्शंस व्हाट हैपन्स, this is oil, this is water, these are your two components। ये आपके दो components हैं and these components, इनको आपस में mix करने के लिए the in between what you have used a substance that is said to be the emulsifying agent। तो इमल्सिफाइंग एजेंट ने क्या कर रखा है, वाटर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है और इधर से ऑयल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। क्लियर? ठीक है, ऑन द वन साइड ये वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, ऑन द अदर साइड ऑयल को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन कंपोनेंट को अलग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू रिमूव और डिस्ट्रॉय द इमल्सिफाइंग एजेंट। मुझे इमल्सिफाइंग एजेंट को बेटा इधर या तो डिस्ट्रॉय करना होगा, ठीक है, या मैं क्या कर दूं, उसको रिमूव कर दूं। देन व्हाट हैपेंस, अब देखो सपोज ये मैंने इमल्सिफाइंग एजेंट को हटा दिया, अब क्या हुआ, इमल्सिफाइंग एजेंट तो है नहीं, सो ये वाटर सेपरेट हो गया, ऑयल क्या हो गया, सेपरेट। सो अब हमारे जो प्रोसेसेस है उनका प्रिंसिपल क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल इज आइदर वी विल रिमूव द इमल्सिफाइंग एजेंट or we will destroy the emulsifying agents. So now see various methods for de-emulsification that I will use. So first method is addition of electrolytes। चलिए इसको भी स्टडी करते हैं। अब oil, this is water। इमल्सिफाइंग एजेंट को बेटा मैं थोड़ा ऐसे शो कर देता हूं, दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इमल्सिफाइंग एजेंट। सो इमल्सिफाइंग एजेंट का जो पार्ट वाटर से जुड़ा होगा वो कौन सा पार्ट होगा, आयोनिक। आयोनिक इन द सेंस हाइड्रोफिलिक। क्लियर हो गया अच्छी तरह? अगर मैं प्रॉपरली बात करूं, मैं इसको कर भी सकता हूं, डजंट मेक एन इशू। इफ आई राइट C17 H35 COO नेगेटिव, सो ये जो आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज इन वाटर, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, सॉरी दिस पार्ट इज इन ऑयल, और ये नेगेटिव वाला आयनिक पार्ट किस में होगा बेटा, वाटर में होगा। और ये क्या है आपका, दिस इज योर इमल्सिफाइंग एजेंट। एक बार जस्ट सी आउट द फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एग्जांपल लिया इमल्सिफाइंग एजेंट का, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑयल में है और ये वाटर में है। क्लियर? हमने क्या ऐड किया, ऐड इलेक्ट्रोलाइट, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हमने ऐड कर दिया। अब वाटर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वाटर, ऑल ऑफ यू नो दैट वाटर कंटेन्स HOH, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस हैं, क्लियर, ये Na पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड O नेगेटिव, और Cl नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा बेटा, H पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के व्हाट द कंडीशन कम्स, ये जो NaCl है ये क्या करेगा, मैं डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, वाटर हटाइए अब यहाँ से। ये NaCl वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। क्लियर? पहला काम वाटर को अट्रैक्ट करेगा, तो वाटर जब अट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ये भी थोड़ा बहुत वाटर से बाहर निकलेगा and it gets separated. So electrolyte addition से क्या होता है, the electrolytes separates water from emulsifying agents। उनसे बेटा वाटर को क्या करते हैं, वो सेपरेट करते हैं। क्यों करते हैं आपको अच्छी तरह पता है। यहां पे वाटर को अगर मैं ड्रॉ भी करूं, देखिए OH और H, H पे डेल्टा पॉजिटिव,
डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, सो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। खुद देख लीजिए, सी आउट वेरी केयरफुली। ये जो Na पॉजिटिव आयन है ये अपनी तरफ किसको खींचेगा, O नेगेटिव को, और Cl नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव को। सो ये वाटर मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इस साइड क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, एंड ऑटोमेटिकली जो हमारा एमल्सिफाइंग एजेंट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और रिमूव हो जाएगा। मेन काम यहाँ पे हमें उसको क्या करना, रिमूव। सो योर इमल्सिफाइंग एजेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर, और अगर एक कंपोनेंट से निकल गया देन ऑटोमेटिकली हमारा काम हो चुका है। सो इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट द वाटर फ्रॉम इमल्सिफाइंग एजेंट। फर्स्ट मेथड इज दिस। नाउ द सेकंड इज second method, add substance which destroy emulsifying agent. It is also the important method. फिर से वही बेटा, ये ऑयल, ये वाटर, इन बिटवीन दिस इज इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, आपको ऐड करना, यू हैव टू ऐड अ सब्सटेंस। सपोज द सब्सटेंस ए इज एडिड, और इस ए का मेन काम क्या है, इट हैज टू डिस्ट्रॉय द इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये किसको डिस्ट्रॉय करेगा, इमल्सिफाइंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करेगा। सो व्हाट हैपन्स, ऑयल एंड वाटर ड्रॉपलेट दे गेट सेपरेटेड। एम आई क्लियर, ऑयल एंड वाटर they get separated, और ये जो emulsifying agent वाला पार्ट है it will be automatically destroyed. Now we'll to the next, third. Two methods we have done. So third will be now addition of dehydrating solvent in water in oil emulsions. ये बेटा मेथड ओनली फॉर वाटर इन ऑयल के लिए है। जस्ट सी आउट व्हाट हैपन्स, वाटर इन ऑयल, यू कैन से दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट, these are oil droplets, okay, and in between what is this, emulsifying agent, okay. So what you have added, you have added a dehydrating solvent. beta dehydrating solvent क्या होता है, we have discussed the solvent which removes water, water को remove करेगा। the example is ethanol, C2H5OH, इथेनॉल। सो हमने क्या ऐड किया बेटा, इथेनॉल ऐड किया। सो इथेनॉल क्या करेगा, इस वाटर को रिमूव करेगा। इथेनॉल रिमूव द वाटर, इथेनॉल रिमूव्स वाटर, और वाटर रिमूव हो गया, इट मीन्स इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑयल। ठीक है, सो रिमूव करने का मतलब ये नहीं कंटेनर से बाहर निकालेगा, ये तो जस्ट वहीं रहेगा, बट इनके बीच का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो ये इथेनॉल हमने ऐड किया, डिहाइड्रेटिंग सॉल्वेंट है, वाटर को यहाँ से निकालेगा, ड्यू टू विच इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी एंड योर कंपोनेंट दे गेट सेपरेटेड। सो दिस वी हैव डन द third method. Now we'll go to the fourth method. Fourth and fifth we'll do combinedly. Fourth, by boil, you can say there are two things, either heating or freezing. हम इसको लिख सकते हैं, boiling तो नहीं लिखेंगे। Either heating of emulsion or I will write freezing of emulsions. Just see what is the meaning of this. Emulsion को हीट करना है, so simply I will say this is water, this is oil, EA emulsifying agent. If I heat, if heating is done, due to heating what happens, temperature increases. If the temperature increases, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सो वाटर की भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और बेटा ऑयल की भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ड्यू टू विच इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ
attraction decreases and they get सेपरेटेड। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। टेम्परेचर इंक्रीज किया, व्हाट हैपन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एज वेल एज ऑयल बोथ इंक्रीजेस। तो बेटा ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन्स, दीज बोथ आर सेपरेटेड। बट हमने इमल्सिफाइंग एजेंट को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ध्यान कीजिए, हमने सिर्फ एक मेथड में कंपाउंड ऐड किया था जिसने इमल्सिफाइंग एजेंट को डिस्ट्रॉय किया था। बाकी मेथड में हम क्या कर रहे हैं, वी ट्राई टू सेपरेट द वाटर एंड ऑयल। समथिंग विल बी हैपन इन द नेक्स्ट केस, फ्रीजिंग। जस्ट सी आउट। Again, I will give the same example. This is the water, this is the oil. In between, what is this? EA, emulsifying agent. If I will increase the temperature, so मैं अच्छी तरह से पता है कि water और oil में कौन freeze करेगा? Water. Clear? So temperature increases, freezing of water occurs. अब वाटर की फ्रीजिंग से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, ड्यू टू विच वाटर समवट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो फ्रीजिंग की वजह से क्या होगा, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स दे sorry, what I have written, temperature increases, freezing of water occurs, due to which the water gets solidify होने की वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन water molecules increases and they separates from oil. oil से क्या हो जाएंगे, सेपरेट। सिंपल है बेटा, इनके अंदर ही फोर्स बढ़ेगी, तो जब अंदर फोर्स बढ़ेगी इस तरह से, तो ये पूरा का पूरे वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे एंड ऑयल गेट सेपरेटेड। सो दिस वी हैव डन द फिफ्थ प्रोसेस। नाउ द लास्ट, सिक्स्थ। The sixth process that we will discuss is centrifugation. This is oil, this is water, in between emulsifying agent. When this is allowed to run in centrifuge machine, all of you know about the centrifuge machine. ये मशीन होती है जो इस तरह से राउंड राउंड रोटेट करती है, जस्ट रिवॉल्विंग जस्ट। सो अगर आप इस इमल्शन को एक सेंट्रीफ्यूग मशीन में रखोगे, ड्यूरिंग विच द रिवॉल्यूशंस आर देयर जस्ट लाइक दैट, कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशंस आर देयर। सो ड्यू टू रिवॉल्यूशन व्हाट हैपन्स, दीज इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है ना, दिस ऑयल एंड वाटर ऑल आर सेपरेटेड, ऑल गेट्स सेपरेटेड। इमल्सिफाइंग एजेंट अलग हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा और वाटर आपका अलग हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि वो रोटेशन इतनी फास्ट स्पीड में होगा, ड्यू टू विच ऑयल और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई है इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड वाटर एंड ऑयल दे गेट्स सेपरेटेड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ऐसा कुछ आपने देखा होगा जब हम मिल्क से क्रीम निकालते हैं, तो मिल्क के अंदर मशीन रख के सेंट्रीफ्यूग मशीन में करते हैं। सो व्हाट हैपन्स, द क्रीम दैट इज द ऑयल पार्ट दैट कम्स आउट ऑन द अपर साइड, वाटर रिमेन्स इन द इनर साइड. So this we have done, student, completed our today's lecture, that is emulsions, and in this we have done the 6 main points: definition, types, formation, identification, application and demulsification. So this is all about the lecture. That's all.